History chapter-8. Okay. अशोका एन एम्परर हु गेव अप वन. तो अब तक हम लोग ने जो पढ़ा वो मैं रिवाइज नहीं कर रही हूँ. ठीक है. So directly we will go for Ashoka, a unique ruler. Ashoka, you know very well from which dynasty? Is belonging from which dynasty? कौन सी डायनेस्टी है अशोका का? हाँ हाँ. Yes, correct. Mauryan dynasty. 3 ruler was there in that. Okay, 3 ruler. That is Chandragupta Maurya, Bindusara, and Ashoka. Ashoka means Chandragupta Maurya actually. He set up this along with Chanakya. Then after Chandragupta Maurya, then Bindusara, and after Bindusara, Ashoka. And that's why it's known as a dynasty. Because same family from same family. Dynasty means what? Dynasty means from the same family, 3 rulers continuously ruling. So that's why it's known as a dynasty. Okay, clear? Dynasty का meaning क्या था? Dynasty means what? ठीक है, definition मैंने पहले आपको बताया, but once again I am recapping all these things. So dynasty means what? This from the same family. Continuously 3 rulers ruled, so that's why it's known as a dynasty. Who were that 3 rulers? Chandragupta Maurya, then Bindusara, and Ashoka. Ashoka was the last ruler of the Mauryan dynasty because Ashoka who gave up after winning also. जब वो जीत गए थे कलिंगा, उनका मीन्स 8 years उन्होंने रूल किया. उसके बाद उन्होंने कलिंगा वॉर जो किया वो भी उन्होंने कॉन्कर्ड किया था, जीत गए थे वो. बट जीतने के बाद वो गेव अप. ही गेव अप. व्हाई ही गेव अप दैट वी विल सी. ओके, that's why it is today's. That's once we will see Ashoka, a unique ruler. Okay, Ashoka, a unique ruler. Why Ashoka known as a unique ruler? Why he was known as a unique ruler? Any idea why he was known as a unique ruler? Why he was known as a unique ruler? Any idea? Page number, got it everybody? 79. सबको मिला ना? हाँ, तो वो यूनिक रूलर क्यों उनको बोला जाता था? ही वॉज अ यूनिक रूलर. Why he was a unique ruler? No one was knowing. Mauryan ruler. ना Mauryan ruler तो है, of course, क्योंकि उन्होंने ये सेटअप किया है ना, तो Mauryan ruler तो होंगे. बट यूनिक रूलर क्यों बोला जाता है? यूनिक मीन्स यू नो ना. यूनिक मीन्स, यूनिक का मतलब समझ में आता है ना. हाँ, तो क्यों उसे यूनिक रूलर बोला जाता था अशोका को? क्योंकि he was the first ruler who inscribed his everything, full life that he was inscribed in his palace. That pillar was there. In that pillar he was inscribed, and that's why he was known as a unique ruler. वो एक ऐसे रूलर थे कि उन्होंने अपना जितना भी चीज वो जीते हारे अपना लाइफ का, जो वो 8 years उन्होंने रूल किया था, वो 8 years रूल में उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि लोग क्या करते थे, एक किंगडम से दूसरे किंगडम्स के ऊपर वो अटैक करते थे. जब वो कॉन्कर जीत जाते थे वो अपना इस तरह से वो एक्सपैंड करते थे, है ना. वो एक्सपैंड कैसे करते थे अपना किंगडम को? पहले तो एक छोटा किंगडम होता उनके पास, पर धीरे धीरे वो उसको एक्सपैंड करते थे. तो कैसे एक्सपैंड करते थे? इसी तरह वो उनको एक्सपैंड करते थे, है ना. जब वो एक किंगडम से दूसरे के किंगडम पे अटैक करेंगे, वो अगर जीत जाता तो वो पार्ट उनका हो जाता. तो इस तरह से वो अपना जो किंगडम है उनको वो एक्सपैंड करें. दैट इज ओनली नोन एज ए एम्पायर. एम्पायर मतलब बहुत किंगडम से बड़ा होता है ना. एम्पायर मींस यू नो ना, एम्पायर मतलब होता है किंगडम से बड़ा. तो वो इस तरह से इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया? तो जीत के. तो वो एक ऐसे रूलर थे. He was the first ruler who inscribed his life history in his palace, and after conquered he gave up.
आफ्टर कलिंगा वॉर उन्होंने जीतने के बाद ही गेव अप. Okay, and his son, that means, and daughter, both of them, Mahendra and Sangamitra, उन्होंने फिर ये अशोका का जो मैसेज था वो आगे उन्होंने लेके गए. So that's why Ashoka, he was known as a unique ruler. So why he was unique ruler, in your textbook what it is given there, that the most famous ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. Underline this part. Okay, all of you underline this part, that he was the first ruler who spread his message through inscription. Okay, why? Through inscription he tried to spread his message. Okay, so he was the first ruler who tried to spread his message through inscription. Okay, and that's why he was known as what? Unique ruler. Understood? Underline that part? Yes. Okay. Most of his inscription, it was written in a Prakrit language. Written in Prakrit language. So Prakrit language means so that common people can easily understand. Okay, Prakrit language मतलब common people के लिए वो easy हो जाता था Prakrit language, because उस टाइम पे कोई दूसरा लैंग्वेज होता ही नहीं था. या तो वैदिक संस्कृत was very difficult to understand, or else Prakrit language, this language he used for whom? For common people. किसके लिए उन्होंने ये यूज किया है? Common people के लिए उन्होंने ये लैंग्वेज यूज किया. Okay, got it? Yes. Then Ashoka's war in Kalinga. ये समझ में आ गया ना सबको? Why he was a unique ruler? Understood everybody? So there, that Prakrit language also you have to underline. That part also you have to underline. Next, Ashoka's war in a Kalinga. Ashoka's war in Kalinga. कलिंगा पता है आपको कहां पर है? हाँ? Odisha. Yes. Present day where it is present? In Odisha. Okay. So Kalinga war, after 8 years ruling part is over, and then he conquered this Kalinga. But Ashoka's war in Kalinga, why this war is very famous? सभी लोग इस वार के बारे में क्यों बोलते हैं? क्योंकि आफ्टर दिस वार अशोका ही गेव अप. उन्होंने अपना जो रूलिंग राजा का जो पद था वो उन्होंने छोड़ दिया. ठीक है, जो राजा कैसे करते हैं? राजा रूलिंग करते हैं. राजा क्या करते हैं? राजा रूलिंग करते हैं. बट जब उन्होंने अब क्यों छोड़ा? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज व्हेन ही कॉन्कर्ड, so next day he again visited there, that place Kalinga. Next day वो फिर से कलिंगा पे गए वहां पर. And what he saw, you know, when he saw that a horrified, means people died, elephants, all the animals, some people injured, crying, bloodsheds, सब चीज जब वो देखे वहां पर, तो उनको बहुत he was felt very bad कि एक वॉर में कितना ज्यादा नुकसान होता है. ये उन्होंने सोचा कि एक वॉर जो मैं जीत गया, बट मेरे जीतने के पीछे
कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किए, नॉट ओनली पीपल, एनिमल्स ऑल्सो, नॉट ओनली पीपल, एनिमल्स ऑल्सो, है ना। क्योंकि उस टाइम पे वॉर में जब लोग जाते थे, अभी जैसे वॉर होता है तो हम लोग पूरा टेक्निक जो नया जो वो है गन्स यूज करते हैं, जितने भी व्हीकल्स जो है वो यूज करते हैं, पर उस टाइम पे तो ये सब चीज था नहीं। तो वो अपना क्या लेते थे, तलवार, घोड़े पे बैठ के या एलिफेंट पे बैठ के, और फुट जो सोल्जर्स रहते थे, बोथ कैवलरी एंड इन्फेंट्री दोनों होता है, तो उसपे वो लड़ाई करता। तो उन्होंने क्या देखा कि इतना ब्लडशेड देखा, जब वो ब्लडशेड देखा उन्होंने, तो उनको बहुत फील हुआ, ही फेल्ट वेरी बैड कि एक उसके लिए मैंने इतना सारे लोगों का जान जो है गवाया, इतने सारे लोगों ने, इतने सारे लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, एंड दे वर क्राइंग, है ना, क्योंकि इंजर्ड, वॉर में इंजर्ड होने के बाद उनको हेल्प करने के लिए नहीं है। कितने फैमिलीज जो थे वो हेल्पलेस हो गए थे, क्योंकि अगर जो वो थे फैमिली मेंबर जो हेड थे वही इंजर्ड हो गए, वही मारे गए, तो जो डिपेंडेंट मेंबर्स जो थे उनका लाइफ तो एकदम खराब हो गया। तो ये सारा चीज सोच के अशोका ने क्या डिसाइड किया कि आफ्टर दिस आई विल नॉट अगेन, आई विल नॉट मीन्स वॉर एंड ऑल दिस थिंग आई विल नॉट डू, आई विल लीव दिस पाथ एंड आई विल चूज सम अदर पाथ। उन्होंने ये राजा का ही ये पाथ छोड़ दिया और वो निकल गए। कहां निकले, कहां गए थे? अशोका का स्टोरी आप लोगों को नहीं पता? हाँ, किसी को नहीं पता अशोका का स्टोरी? अशोका तो इतना सीरियल आता था, वो भी नहीं देखते थे क्या आप लोग? क्या देखते थे फिर? हाँ, मूवी। तो अशोका जो थे उन्होंने वॉर वो देखा, तो उन्होंने उस दिन से वो डिसाइड कर दिए कि मैं और आगे लड़ाई नहीं, मैं राजा जो लाइफ है, राजा का जो लाइफ है वो मैं छोड़ दूंगा। और ही वेंट वेयर, ही वेंट टू बुद्धास, बुद्धा के पास हो गए और उनको उन्होंने क्वेश्चंस किए, उनका पास जाके उनके वो क्या बन गए, फॉलोअर्स बन गए। और वो आगे जो है बुद्धा का जो मैसेज जो है वो फिर दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वो काम किया। धम्मा आगे हम पढ़ेंगे और, ठीक है। अशोका वो बुद्धा के मैसेज को फिर आगे वो लेके गए। तो और वह अशोका के बाद उनके बच्चे जो उनके सन थे, महेंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा, उन्होंने ये किया। सो दिस इज ओनली द अशोकास वॉर इन कलिंगा, ठीक है। So now you underline. Kalinga is the ancient name of coastal Orissa. Underline Kalinga. This online students, you people are also underline this one. Kalinga is the ancient name of coastal Orissa. Underline this one. Okay. Now Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. Okay, when he next day when he visited and he saw such a horrified and bloodshed, so he decided he will not do again this all war. And he is the only king in the history. This part you have to underline. This part also you have to underline, that he is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. Ashoka, that's why he was the unique. वो इतने यूनिक क्यों थे? एक तो उन्होंने अपना मैसेज इंस्क्रिप्शन से वो किया, स्प्रेड किया। सेकेंड थिंग, ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के पहले रूलर थे जिन्होंने जीतने के बाद गिव अप कर दिया, मतलब जीत गए फिर भी वो क्या किए, छोड़ दिए। सो दैट्स व्हाई ही वाज द फर्स्ट। कोई ऐसा करता है क्या कि एक इतना बड़ा उन्होंने कलिंगा को जीत गए और उसको फिर उन्होंने उसके बाद वो छोड़ दिए, बोले कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाई this it is written there, he was the only king in the history of the world who gave up a conquest after winning a war. Okay,
Now, Ashoka's inscription described the Kalinga war. Whatever I have told, that is only given there in that part. Ashoka's this one uh, inscription describing the war. कि मैंने जैसे बताया कि वो 8 साल के बाद वो वॉर गए, वहां पर वो वॉर हुआ, नेक्स्ट डे वहां पर वो गए, सब देखे कि कितने लोग मारे गए थे, एनिमल्स, फैमिली, पीपल, और उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिया कि वो देख के उनको बहुत दुख हुआ, he felt very bad, and then he said no, I will not go ahead from this route, I will choose some other path. तो वो पूरा इसमें दिया है, so I am not going to read that one. Okay, now the next one is, what was Ashoka's dhamma? What was Ashoka's dhamma? What was Ashoka's dhamma? Now dhamma means what? Dhamma means dham. Dhamma means धर्म. धर्म means धर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी वर्ड तो आपको पता ही होगा, धर्म. तो what was Ashoka's dhamma? अशोका का क्या धम्मा था, उन्होंने क्या वो किया, that we will see now. So Ashoka's dhamma did not involve worship of God. उनके धम्मा में क्या था कि वर्शिप ऑफ गॉड नहीं था, कि भगवान का मूर्ति रखना, जैसे हम लोग करते हैं, यूजुअली वी यूज्ड टू डू ना, हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति रख के हम पूजा करते हैं. सो दैट वाज नॉट देयर. उनके धम्मा में ये चीज नहीं था कि गॉड का मूर्ति रख के उसको पूजा करना. और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस मीन्स यज्ञ. सैक्रिफाइस मीन्स जो यज्ञ होता है. यज्ञ मीन्स यू नो, है ना, हम लोग करते हैं ना, घर में भी हम लोग हवन कुंड लाके उसमें घी और वो पूरा वो डालते हैं, घी डालते हैं, और वो सामग्री जो होता है हवन का वो डालते हैं, मंत्र वो करते हैं ना. तो वो दैट इज नोन एज अ सैक्रिफाइस. दैट इज नोन एज अ सैक्रिफाइस. तो अशोका के इसमें ये दो चीज नहीं था. फर्स्ट इज worship of God. Second one is sacrifice. No need to do any sacrifice. Performance, ये sacrifice यज्ञ वगैरह बड़ा, क्योंकि to do यज्ञ, ancient time period में यज्ञ means lot of money they need. Because उसमें हम लोग के जैसे यज्ञ नहीं होता था. बहुत सारे पंडित रहते, ऋषि मुनिस रहते, और वो घी, और फिर sometimes animals also they are doing sacrificing, so lot of money they at that time they used to spend on a yajna. तो ये दोनों चीज अशोका के धम्मा में नहीं था. ठीक है, अशोका के धम्मा में ये दोनों चीज नहीं था. वर्शिपिंग गॉड एंड परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस. सो अंडरलाइन दिस पार्ट ऑल्सो. Okay, underline. Online students, you can also underline the same. Okay, yes. Now he felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teaching of the Buddha. How? He said that he thought like that actually. He thought that कि जिस तरह से एक parent, father usually, but both mother और father both, कि जिस तरह से वो अपने son को instruct करते हैं कि ऐसे पढ़ाई करो, ये रोज का जो उनका आपका पढ़ाई का देखते हैं ना आपके parents, कि आप ठीक से पढ़ रहे हो क्या नहीं, whether you are doing your homework or not, whatever, helping you parents. सो जिस तरह से वो ये बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने ये सोचा, he felt कि जिस तरह से एक पेरेंट, फादर अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि which this subject you have to do like this or that, उसी तरह जो है मेरे गुरु, मैं किसके पास जाऊं, बुद्धा के पास. अगर मैं बुद्धा के पास गया तो मुझे वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कि which path is good for you. ठीक है, वो ऐसे उन्होंने सोचा. ठीक है, ऐसे उन्होंने सोचा. सो
There were a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religion, and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. So means after this, Ashoka he felt that there were so many problems. कितने सारे problems है कि in his empire, अपने ही empire में different people they are believing different religion. तो ये लेके क्या होता था? Sometime conflict हो जाता था. Conflict in the sense झगड़ा. कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक इशू बन जाता था डिफरेंट रिलीजन, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग उसके एम्पायर में जो लोग थे वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे. सो ऑटोमेटिकली माइस बेस्ट दिस माइस और कुछ ना कुछ लेके उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था. स्लेव्स और सर्वेंट्स को इल ट्रीट किया जाता था. जो उसके वहां पर एम्पायर में जो स्लेव्स थे उनके साथ क्या होता था? इल ट्रीट होता था. इल ट्रीट मतलब हाँ, इल ट्रीट मीन्स रॉन्ग ट्रीटमेंट, उनके साथ खराब बर्ताव किया जाता था. ये भी एक प्रॉब्लम था. उसके एम्पायर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे. फिर एनिमल्स को ये मैं जैसे परफॉर्मेंस ये यज्ञ वाला हमने इसमें देखा था ना धम्मा के इसमें कि परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस. तो ये भी उन्होंने क्यों देखा कि उनके इसमें इतने सारे एनिमल्स को सैक्रिफाइस कर दे रहे. दिस इज नॉट गुड, है ना. इनोसेंट एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं? इनोसेंट होते हैं ना, वो तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा. सो व्हाई the people they used to do like this. Then besides there were quarrels in the family and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve this problem, so he appointed officials known as the Dhamma Mahamata. So you underline this part. Ashoka felt it was his duty to solve this problem. From here, online students, from here you have to underline this. Ashoka felt that it was his duty to solve these problems. So he appointed officials, and that officials were known as what? Dhamma Mahamatas. Dhamma Mahamatas. Underline, all of you? किया सब लोग ने? हाँ. तो जब अशोका ने क्या देखा, वो तो बुद्धा के पास गए, बुद्धा से राइट पाथ उनका क्या है वो सीखने के लिए वो गए. फिर जो धम्मा हम लोग देखते हैं धम्म, तो उन्होंने क्या सोचा कि इतने सारे मेरे इसमें ये है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे को क्या करना है? शॉर्ट आउट करना है. तो मैं कैसे करूंगा? तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स रखे, है ना, हेल्पर्स. ऑफिशियल्स इन द सेंस हेल्पर्स. तो उन्होंने क्या किया? कुछ हेल्पर्स को रखा. उनका नाम उन्होंने क्या दिया? यस, धम्मा महामतास. धम्मा महामतास. ओके, ये उन्होंने दिया. Who went from place to place and teaching people about धम्मा. तो वो कैसे जाते थे? वो एक जगह से दूसरे जगह में जाते थे. प्लेस टू प्लेस, from one place to another place. These officials, कौन? उनके जो officials थे, और वो जा जाके लोगों के इसके बारे में बताते थे कि all this thing is not right. Means slaves और servant के साथ हमको interact नहीं करना चाहिए. Then religions, different religions के बीच में conflict नहीं होना चाहिए. All religions have equal value, है ना. हर एक religions का equal value होता है. So we should give respect to each religion. हमको हर एक religion को respect देना चाहिए. Slaves and servants को हम ill treat नहीं करना चाहिए. Family members जो आपस में और neighbors के साथ जो करते हैं वो भी हमको नहीं. ये सारा lesson जो है उसके officials घूम घूम के देते थे. धम्मा महामतास, ठीक है, उनको पढ़ाते थे. About धम्मा मतलब ये धर्म के बारे में पढ़ाते थे. ओके. Now Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. जो उनके उन्होंने inscribe किया था, उनके जो pillars पे उन्होंने जो पूरा message inscribe किया था, तो कुछ ऑफिशियल्स को पढ़ना नहीं आता, मतलब कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता था. तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को क्या कहा कि जिनको पढ़ना नहीं आता है
वो ऑफिशियल्स उनको पढ़ के समझा देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने दिया था। सो ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। Then Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and Sri Lanka. Okay, he built roads, dug wells, and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human and animals. मतलब see, after when he gave up his war, जब उन्होंने ये अपना वॉर गिव अप कर दिया, राजा का वो छोड़ दिया, उसके बाद सोचो उन्होंने कितना अच्छा काम किया है ना, कितने सारे काम किए उन्होंने। धम्मा और महात्मतास को रखा, ऑफिशियल्स को, कि वो लोगों को जाके धर्म के बारे में पढ़ाए कि ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसा होता है, वो उनको पढ़ाए। फिर जिनको पढ़ना नहीं आता उनको पढ़ के समझाए। फिर उन्होंने मैसेज, उनका जो ये मैसेज है अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री भी स्प्रेड किया, जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, जितने भी वो वहां पर ये मैसेज स्प्रेड करें। देन ही कंस्ट्रक्टेड दिस रोड्स so that the people can go easily, move from one place to another. Dug well, पानी की सुविधाएं उन्होंने किया। रेस्ट हाउसेस मीन्स क्योंकि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो वो रात को हॉल्ट करेंगे। उस टाइम पे ऐसा कोई बिल्डिंग्स नहीं रहता था, लोग कहाँ रहते थे? केव्स में, है ना। पैलेस होगा तो ठीक है, पर जंगलों के बीच में कहाँ, क्योंकि जंगल ही था ना, रास्ता तो था नहीं, पर उन्होंने बनवाया, ठीक है। फिर उन्होंने रेस्ट होम बनाया, मेडिकल फैसिलिटीज वो अरेंजमेंट किया, बोथ फॉर एनिमल्स एंड फॉर ह्यूमन बीइंग। सो सी अशोका, एंड दैट्स व्हाई ही वाज सो फेमस। वो उस टाइम के एक फेमस रूलर्स थे, एक यूनिक रूलर थे, क्योंकि उन्होंने काम भी तो कितना अच्छा किया। यस और नो? किया है ना, अच्छा, ओके। देन जस्ट अ मिनट, online students, I have shared the link, so in between you have to submit your attendance. Okay, online students, those who are present, in between I have shared the attendance link, so you have to submit your attendance. Okay, so this is known as what was Ashoka's Dhamma. समझ में आया? Ashoka's war in Kalinga, understood? Yes. What was Ashoka's Dhamma? This part you understood? Yes. अशोका के बारे में अभी कुछ आइडिया आया कि नहीं आप लोगों को? So whenever you will get time, books if you will get, read it. कुछ ऐसे बड़े बड़े जो रूलर्स थे उनके बारे में आपको होना चाहिए नॉलेज। जो अशोका तो एक फेमस रूलर्स थे, तो उनके धम्मा के बारे में भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज Ashoka's message to his subjects. अब खत्म ही हो गया। So Ashoka's message to his subject, in that means people perform variety of rituals when they fall ill. Yes or no? When we will feel sick, at that time we are doing prayer. Before exam we will go, भगवान पेपर इजी आना चाहिए, अच्छे से मेरा पेपर जाना। करते हो कि नहीं करते? एवरीबॉडी, आई यूज्ड टू। ऐसा नहीं कि मैं रोज नहीं करती, रोज करना चाहिए। आई जस्ट वांट टू से यू दैट एवरी डे वी शुड डू प्रेयर। अपने अपने रिलीजियस के हिसाब से आप करो, जैसे भी आप करते हो करो, एटलीस्ट भगवान गॉड के सामने हमको हाथ जोड़ना चाहिए। ये नहीं है कि सब जब हमको जरूरत है तभी हम भगवान के पास जाए, फूल चढ़ाए, पेड़ा चढ़ाए, दिस दैट। वी ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड टू डू दिस। यस और नो? जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के पहले दिन बोर्ड का एग्जाम, मेरे को अच्छा दो, मैं इतना चढ़ा दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना? तो वही दिया है अशोका ने कि पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फेल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड। कब कब करते हैं लोग, देखो भगवान को वो
कि जब वो इल हो जाते हैं तब, when their children get married at that time, when children are born, कोई नया बेबी आता है तब वो करते हैं, और when they go on journey, अगर जर्नी के लिए हम जा रहे हैं तब भी हम भगवान के पास जाके बोलते हैं हमारा जर्नी सेफ होना चाहिए, है ना. So these rituals are not useful. What he said, these rituals are not useful. Why not useful? If instead people observe the other practices, this would be more fruitful. वो क्या बोलना चाह रहे हैं अशोका कि ये जो हम लोग करते हैं, this is not useful. Instead of what other practices we should do, what are that? Like these are being a gentle with slaves and servants, कि आप हमेशा जेंटल रहो, सबके साथ अच्छे से बिहेव करो, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे स्लेव्स हो, चाहे कोई भी हो, हमें उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए. सेकेंड थिंग, रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स. हमको एल्डर्स, नॉट ओनली एल्डर्स, इवन यंगर ऑल्सो. हम यंगर जो है, हमसे छोटे हैं, उनको भी आप रेस्पेक्ट दो. जो हमसे बड़े हैं, ऑब्वियसली वी शुड, जो बड़े हैं उनको तो हमको रेस्पेक्ट देना ही है. ओके. ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन. ट्रीटिंग जितने भी क्रिएचर्स है इस दुनिया में, भगवान ने जितने भी क्रिएचर्स बनाए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, सबको उनके साथ हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए. ओके. गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स. जो ब्राह्मण्स है, जो मॉन्क्स होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क जिसको बोला जाता है, उनको आप गिफ्ट्स करो. It is both wrong to praise one's own religion or criticize others. And this is wrong. कि हम अपने रिलीजन को अच्छा बोलेंगे और दूसरे के रिलीजन को खराब. This is not the right way. Nowadays, if you will see, if you will open television, so what? Hindu, Muslim, this, that, say, ये आपस में क्यों लड़ते लोग? नहीं लड़ना चाहिए. This is wrong. We should not, because all religions have equal value. हर religion का अपना equal value होता है. हर religion equal होता है. Okay, so we should not. Then each one should respect to other religion. If one praise one's own religion while criticizing one's another, one is actually doing greater harm to one's own. कि हम अपने religion को अच्छा बोलेंगे, दूसरे को hurt करेंगे, that means what we are doing? We are losing our own religion. हम अपने ही religion को खराब बोलेंगे. So therefore one should try to understand the main idea of others religion and respect it. हमें दूसरे religions को भी respect करना चाहिए और believe करना चाहिए. Because all religion, God is one only the name is different. भगवान एक ही होता है, अलग अलग नाम से उन्हें बुलाया जाता है. So then why we should do all these things? है ना? So all religion is equal. We should give respect to all the religion. Okay. So here we have finished our Ashokas. This one. Okay. This Samvad Mauryan Empire. This is other countries. It is given there. Okay. Let's see. So we have finished this one. So online students submitted your yes. So okay. Thank you. I will end here my class.